And another person who is a great influence on me is Swami Shivananda ji. Swami Shivananda ji was a Dr. Kuppu Swami initial, and he went to Malaysia for serving and all those. So that was the influence. First time I went outside India is Malaysia because of the influence of Swami Shivananda. And come back to India, Shivananda ji established Rishikesh. And he has contributed more than 300 plus authentic works in the spiritual field, in the yoga field. So these people are my influences. So when I used to ask this question, we're just following British medical system, always the answer used to be, in India I have yoga, Ayurveda, Indian spirituality. Why can't I adopt this? Why can't I add this? Why can't I incorporate this in my medical field? I always used to think that. But medical field has become so much super specialization. After completing my MBBS, I was thinking where to join, what to join. I got MD in pathology, which I was not interested. MD in forensic medicine, which was least interested because it is not a cup of my tea. And MD general medicine I could not get. So I was in a transition time where I was interested in integrative medicine. So कुछ हद तक क्लियर हुआ था कि कौन सा गोल कहाँ पे जाना है. तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन वाज द गोल. आयुर्वेदा और योगा को एक प्लेटफॉर्म में लेके खड़ा करना है तो कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर्स, एलोपैथी मेडिकल डॉक्टर्स, साइंटिस्ट लोगों को कन्विंस करना है. जस्ट डूइंग मुद्रा एंड डूइंग मुद्रा विद साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मेक्स अ डिफरेंस. आज का क्लास आपके लिए अलग पर्सपेक्टिव ओपन करेगा. फॉर एग्जांपल, मैं नमस्कार मुद्रा से स्टार्ट किया. इफ आई से that Namaskara Mudra have an influence. From the right hand, information goes to your spinal cord and goes to the left brain. From the left hand, information goes to the hand and then to the spinal cord, then to the right brain. When you are doing this, there is a systematic hemispherical synchronization. ये देखो word कैसा है? Hemispherical, दो spheres है, right hemisphere, left hemisphere. दोनों हेमिस्फीयर का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होता है और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का इंटर सेरेब्रल कनेक्शन. तो जो इंफॉर्मेशन जहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड से पास होता है, दैट विल बिकम इंक्रीज. तो इतना ही करने से ये हो सकता है. तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग. तो दिस वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी. मुद्रा के ऊपर ऐसा जो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट कहीं बहुत रेयर है. फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड में जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वहां पे क्या रहता है? फेस इज द फर्स्ट ऑर्गन विच इज यूज्ड मैक्सिमम फॉर द कम्युनिकेशन. फेस, जनरल कम्युनिकेशन, योगा का टर्म सभी हम लोग बात नहीं कर रहे. जनरल कम्युनिकेशन फर्स्ट है. ये वाला हम लोग नहीं दिखाएंगे, वो सरप्राइज रखना था, देखा दिया आपने. ओके, हाँ, ओके. ये एक ही स्लाइड पे हम लोग वी कैन स्पेंड 4 hours प्लस. बट ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम ही स्पेंड करेंगे. देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज योर फेस. The second most widely used part of your body for any communication, जो थेरेपी हो सकता है, जो बात हो सकता है, जो कुछ भी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, hands are used maximum after the face for communication. For majority of all the sorts of treatment, एलोपैथी, आयुर्वेदा, जो भी आप बोलो, वो ट्रीटमेंट में hands are used maximum. So in that context, आप जस्ट सोच के देखो, आप सोच के देखो, hands are used so much widely. So this has created interest in me to learn Mudra Yoga. I visited various people, gurus, teachers, doctors, Ayurveda doctors, to learn this. So coming back to the main topic is there is interesting correlation. So Hinduism
and Buddhism are the only two religions of the world which have used maximum number of body gesture and hand gesture. देख लो. And very interestingly, each part of the body which in some gesture is representing something connecting to the subtle metaphysical world beyond the bodily senses, beyond the mind senses. There is a subtle world, metaphysical world, which we try to connect. So these people have used mudra as one of the context to increase maybe the higher mind functioning or functioning of the mind beyond the brain. Maybe. I'm saying this is maybe. How do you say that? We'll start with the definition, simple definition of mudra. Mudra is a Sanskrit word which means mudra, the one which mudita or mudha means happiness. The one which gives happiness. Dra means to give. The one which gives you happiness is called as mudra. Another definition is mudra as a physical term. It is a gesture or a seal or attitude or the posture of the body or certain parts of the body in a particular way where there is a psychic, emotional, spiritual or artistic gesture or attitude with certain correlations. So with this definition, I can say there are three categories of mudras. One is yoga mudra. Second one is puja mudra. When you are doing worship, you are using the puja. Third one is dance mudra. So yoga mudra, puja mudra, and dance mudra. So here we are exclusively discussing about yoga mudra. So yoga mudra, scientific, you are telling, and it is something mystical. We do not know. When in my, in any of my yoga studies, anywhere, कहीं पे भी आप yoga सीख लो, 200 hours yoga teacher training, 500 hours yoga teacher training, 10,000 hours जो भी है, that is exactly either USA Yoga Alliance approved or European Yoga Alliance approved, but Indian approved ऐसा कुछ नहीं content. So they do not know so much detail. They have made some particular package for 200 hours, 500 hours, and they teach, and everybody follows that. So there are 84 lakhs of asanas. So nobody can be yoga master at all. So whatever MD I have learned is just an orientation, nothing else. The course do not give any importance for the course, but only give importance for the content of the person, not the course. Okay, course is just to show the world that I have done something. So with that, I correlate mudras with aura or biomagnetic energy or prabhavalaya or psychoneural energy circuits, which can be activated by adopting certain parts of the body in a particular way. So to connect this hypothesis that इसमें कुछ तो है, मैं ऐसे करूँगा कुछ होगा, either brain में होगा, body में कुछ होगा. So there is some interlink which is we are missing it, and it is the lost science. So there are a lot of books or content which is lost totally. So there are around 729 mudras, 729 yoga mudras, various sources. Hatha yoga में कुछ है, शिवा संहिता में कुछ है, मुद्रा प्रदीप में कुछ है, कुछ books है. But majority of them were lost. We do not know. We don't have a perfect picture. जो Google में आपको दिखाई देता है, जो content दिखाई देता है, it is not completely reliable. And you imagine 729 mudras. Out of these 729 mudras, I have learned to teach around 500 plus mudras. In any of my courses of yoga, anywhere I learned, we do not know more than 10 mudras. So that is the interesting part of it. 729 mudras, which altogether I can teach around 500. And I use this as very interesting correlation. So if we imagine how our brain will see our body, brain हमारे body को कैसे देखता है, if we think that
नॉर्मल मेरा अभी हेड प्रोपोर्शनेट है, चेस्ट एक पर्टिकुलर वे में है, मेरा हैंड से पर्टिकुलर वे में है। हाँ, तो सॉरी आपने तो सीक्रेट बता ही दिया। So medically we say it as a homunculus. How the brain will see your body is like this. उसमें आप देख लो, sensory homunculus. The information goes from the peripheral part to the brain. कहाँ से ज्यादा इंफॉर्मेशन जा रहा है? हैंड से। मोटर इनपुट देख लो, फ्रॉम द ब्रेन इंफॉर्मेशन कमिंग टू द बॉडी, कहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है? ब्रेन से, हैंड्स। So this is a fact which nobody can deny is the motor homunculus. What medically we call it as motor homunculus is the way brain will see our body based on the receptors. जो बॉडी से दूसरे सिग्नल्स, यहाँ पे मेरे बॉडी से जो सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे हैं, there are too many number of receptors. I can name few. touch में fine touch, coarse touch, gross pain sensations, proprioception. If I close my eyes, मैं आंखें बंद करके मेरा उंगली को कहीं पे घुमाता हूँ तो मुझे पता चलेगा मैं कहाँ पे उंगली कहाँ पे बेंड कर रहा हूँ, क्या एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या फ्लेक्स कर रहा हूँ. We'll get to know. How we'll get to know? There are receptors which will send signals called as proprioceptors. उसको हम लोग proprioception बोलते हैं. So number of receptors, science says that number of receptors are maximum in hand compared to any part of the body. ये वाला is difficult to digest. This context, ऐसे context में हम लोग मुद्रा कहीं पे भी सीखा नहीं होगा. तो ये कोरिलेशन इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा. ये हाइपोथेटिकल है, इसमें डिबेट किया जा सकता है, लेकिन ये तो सत्य है. दिस इज द ट्रुथ वेयर रिसेप्टर्स आर मैक्सिमम इन हैंड. इट मींस व्हेन यू यूज सम पार्ट, इसमें और एक इंफॉर्मेशन है. थंब हैज अ बिगेस्ट एरिया इन द मोटर कॉर्टेक्स. जो ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स बोल के एक जगह रहता है, वहां पे सारे आपके बॉडी के पार्ट्स को एक एक जगह, एक एक पॉइंट रहता है. तो वहां पे थंब के लिए सबसे बड़ा जगह इन द ब्रेन टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन. इसका मतलब क्या है? थंब मूवमेंट से बहुत ज्यादा ब्रेन को न्यूरोनल सिग्नल्स जाता है. न्यूरोनल सिग्नल्स विल गो मैक्सिमम टू द ब्रेन फ्रॉम द थंब एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फिंगर. ये डिस्टेंटली वी कैन से दैट थंब इज अ मेजर पार्ट. न्यूरोफिजियोलॉजी अग्रीज विद दैट बिकॉज ब्रेन में मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स में बहुत ज्यादा जगह किसके लिए दिया गया है? थंब के लिए. तो हम लोग मुद्रा में यूज करते हैं थंब. यहाँ पे मैं ज्ञान मुद्रा किया, आकाश मुद्रा किया, पृथ्वी मुद्रा किया, सूर्य मुद्रा किया, वरुण मुद्रा किया. थंब कॉमन है. थंब सब जगह पे कॉमन है. मे बी मैं बोल सकता हूँ हाइपोथेटिकली, मे बी दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई, इट इज माई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. मैं होलिस्टिकली भी थोड़ा सोच सकता हूँ और रिडक्शनिस्ट अप्रोच, एलोपैथी डॉक्टर के जैसा रिडक्शनिस्ट अप्रोच भी सोच सकता हूँ. रिडक्शनिस्ट अप्रोच के हिसाब से मोटर होमनकुलस विल मेक मी अंडरस्टैंड दैट ओके देयर इज सम लिंक बिटवीन मुद्रास एंड रिसेप्टर्स. तो उसके हिसाब से व्हाट आई क्लेम हाइपोथेटिकली, मैं क्या क्लेम करता हूँ, कुछ भी हम लोग मुद्रा करते हैं उसका कनेक्टेड नर्व एंडिंग एट द पार्ट ऑफ योर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन कहीं पे एक्टिवेट होता है. उसका कनेक्टेड जो ऑर्गन है उसको स्टिमुलेशन मिलता होगा. स्टिमुलेशन कैसे मिलता होगा? वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता होगा, बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स. डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का जो रिसर्च है, एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अपोजिट में जो होता है बॉडी में. स्ट्रेस हो तो क्या होता है? हार्ट बीट ज्यादा होता है, पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होता है, जो भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स का कंटेंट है. ब्रीदिंग फास्ट होता है, माइंड मेंटल अलर्टनेस होता है. तो उसके अपोजिट में कौन सा है? रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स. व्हाट आई क्लेम इज बाय डूइंग सर्टेन मुद्रास your parasympathetic nervous system might get activated because of the stimulation of certain parts of the brain, and it can in turn stimulate some way, I don't know which way, functional brain MRI करके, नहीं तो कुछ और टेस्ट करके हम लोग पता करना पड़ेगा. बहुत सारे रिसर्चर चाहिए, मैं तो अभी नहीं करूंगा, क्योंकि और एक रिसर्च बताता है कि इफ आई सिट फॉर डूइंग रिसर्च, मैं रिसर्च के जैसा करते बैठूं तो
क्या होगा, और मैं बाबागिरी करूंगा तो क्या होगा. I find babagiri is more interesting, more appealing, more financially viable than doing research. So I chose to integrate. बाबागिरी थोड़ा करूंगा और थोड़ा रिसर्च करूंगा. हाइपोथेसिस उतना ही दूंगा. जो रिसर्च करने वाले हैं, they can invest time and energy for functional brain MRI and find out what is happening in what mudra. We'll go to the previous slide of understanding of the hand. योगा के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से, जो हैंड्स का जो कनेक्टिविटी टुवर्ड्स पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अलग अलग है. आयुर्वेदा के हिसाब से अलग है, वो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी जस्ट टू मेक अवर अंडरस्टैंडिंग इजी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसी एक ही 1 आवर में आपको पूरा बहुत सारा वैरायटीज ऑफ मुद्रा में सिखाने जाऊंगा तो आपको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. बट उसका कॉन्सेप्ट में समझा दिया तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप मुद्रा अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान होगा. So this is how I learned for myself and I want to teach it for all the people. So आप सब लोग हाथ ऐसे कीजिए. हमारा अटेंशन स्पैन कम रहता है तो इसलिए I use some gestures in between. तो हाथ ऐसा कीजिए. Just correlate this one is adopted from play technique. ऐसे खेल के जैसे खेलना है, सीखना है. तो मोमेंट, थंब को मोमेंट करो एंड यू कैन से अग्नि, फायर. इंडेक्स फिंगर को मोमेंट करो, यू कैन से एयर, वायु. मिडिल फिंगर को मोमेंट करो, यू कैन से दैट इट इज आकाश और स्पेस, ईथर. रिंग फिंगर को मोमेंट करो, इट इज पृथ्वी, अर्थ. लिटिल फिंगर को मूव करो, इट इज जल, वाटर और वरुण. सो क्विकली यू कैन जस्ट you don't need to answer to the group, but you can answer to yourself. What is this element? Index finger. Answer karo. What is this element? Just at the back of your mind. Agni, Vayu, Akasha, Prithvi, Jal. ये कौन सा है? Little finger, Jal. Ring finger, Prithvi. Middle finger, Akash. Index finger, Vayu. Thumb, Agni. If I say thumbs up, Agni. If I say index finger movement, Vayu. If I say middle finger, yes, Akash. If I say ring finger, Prithvi. If I say little finger, Varuna or water. This is the first basic understanding of mudra. Second secret is, if I connect these 5 elements with each other like this, just a common understanding. If I'm touching this part like this, so what it means is, concept wise, you are connecting the Agni Tattva and Vayu Tattva together. Agni and Vayu together. So this kind of gesture where you are touching the tip of each finger, we call it as a balancing. You are balancing those two entities. So you are trying to balance the Agni and Vayu together. Then the name of this is Jnana Mudra. Name you don't worry, understand the concept behind it. Another 2-3 secrets I'll share, then you will be able to understand much better. First secret is 5 fingers, Panchamahabhuta is the first secret. Each element represents something. Second secret is, if you touch the tip of one another, it represents you're connecting, balancing those 2 elements. Third secret, if I use the tip of one finger to the base of other finger. For example, I'm using Agni at the base of Prithvi. So this name of this mudra is Aditya Mudra, detox mudra. But understand the concept. Agni is overpowering the earth element. So there is an increased metabolic activity. You can think like that. Okay. Before that, I'll add only one part. If you correlate the Agni part of the yogic understanding to the medical understanding. Agni, I can say it is a Jataragni, you can say it is a metabolic activity of your body, you can say the changes in the thought process. Agni, anger, you can say. So metabolic activity in the body I can represent as Agni.
Vayu, gross correlation. Vayu, you can say that dissolve the oxygen of your body. जो भी ऑक्सीजन कंटेंट है, वायु का कंटेंट है, ऑक्सीजन जो भी एसिड बेस बैलेंस का जो भी कंपोनेंट्स है, यू कैन कॉल इट एज वायु. आकाश. So at the back of my nose there is a space, at the back of my mouth there is a space, between the heart and lung there is a space, between the cells there is a space. The space within the body, the space outside the body. How Ayurveda says you have Vata, Pitta, Kapha permutation combination, you adjust your doshas with the external environment. When you balance this environment, you will not have disease. Similarly, you have a space within your body, your space outside your body. When you balance the space within and outside, to a certain extent, you will be healthy. In that context, you can take it. Fourth one is earth element. All the hard tissues of your body, let it be muscles, tendons, ligaments, bones, anything, internal organs, anything hard can be earth element. Vayu, little finger. So 70+% of your body contains water. 90+% of your brain contains water. So important part of the body, water. So if you can grossly correlate with the metabolic activity, the dissolved oxygen, the space, the hard tissues of the body, earth element, and the water, I can somewhere make sense that I can connect this with my body. I'll go to the next slide. Okay, this is an example of, yeah, this is how homunculus, this is how the brain will visualize our body. Very interesting. You can go to the next slide. Okay, so this is exact cut section of the brain, cerebral cortex, which shows the sensory and motor areas of different parts of the body. You can see there the fold of the brain and the part of the body. For toes, there is a small space. For leg, for the thighs, for hip, for abdomen area, for the head and neck, there is a small space. For arm, there is a small space. But for hand, there is a bigger space. If you can see on the motor cortex on the other side, for the thumb, there is a big area. Another interesting part is after the fingers, your tongue and lips contains maximum number of receptors after the hands. उसमें एक interesting understanding है, which you'll remember. With this remembering, you will be able to correlate and understand mudra better. यहाँ पे भी lips और tongue का बात आता है. We'll remember, we'll imagine the kiss of a boy to girl or mother to daughter, जो भी है, kiss. It will give you maximum contentment or a pleasure, whatever sense you take, sexual, romantic, unconditional love, जो भी sense में, it will give you a satisfaction or contentment. Why? Because maybe number of receptors are second highest in the lips and tongue. So देखो, lips and tongue के लिए इतना importance हम लोग देते हैं. Any movies or any place anywhere will intensify the focus on these kind of things. Kiss का focus हम लोग intensify करते हैं, but hands का focus we never intensify. If you understand and accept, it will be very nice. So to correlate and connect, I given the example, second highest number of receptors are in the lips and the tongue. इसलिए जो previous slide में देख लीजिए, हाथ के बाद में उसका tongue और उसका lips सूजा हुआ है. It means based on the number of receptors, brain will understand the body like this. तो इसके हिसाब से coming back to our core concept is there is a something these mudras can offer. So with this correlation, we'll start with simple little quicker understanding of mudras. सब लोग ऐसा कीजिए, वो एक slide वैसे रहने दी. हाँ. So when I'm saying connecting to each other is balancing, putting the tip of one particular finger to the other base is intensifying the one which is connecting to the base. अभी इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? Increasing the fire element and फायर को मैं अर्थ एलिमेंट से जोड़ने के सोच रहा हूँ. तो इससे क्या होता है? द मेटाबॉलिक रेट ऑफ योर बॉडी इंक्रीजेस, द वेट विल रिड्यूस. इसमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है. बोलते हैं आदित्य मुद्रा. दिस इज नेम ऑफ दिस इज आदित्य मुद्रा. आदित्य मुद्रा इज यूज्ड फॉर डिटॉक्स. हो सकता है ग्रॉस कोरिलेशन, अग्नि, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा हो तो आपका
जो मल है, आयुर्वेदा के हिसाब से 3 मल है, जो फीकल मैटर, यूरिन एंड स्वेट, स्वेदा। तो तीनों मैटर, तीनों टॉक्सिन्स बॉडी से ज्यादा निकल रहा है, तो आमा का जो कॉन्सेप्ट है डिसीज में, आमा का जो कॉन्सेप्ट है, आमा विल बी लेस, टॉक्सिन्स विल बी लेस, बॉडी विल बी फ्री। तो ऐसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। थर्ड वन, 1 2 3, फोर्थ वन, if I fold one of the finger and put other finger on it, what exactly I'm doing is, thumb is Agni, index finger is Vayu. I'm reducing the Vayu and controlling with the Agni. So this is Vayu Mudra. I'll use it in asthma, bronchitis, acute bronchitis, chronic bronchitis, जो भी है lungs related issues है, COPD है, मैं यूज करता हूँ ऐसे। तो मैंने 4 कंटेंट बताया। एक तो फिंगर्स का एक एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 एलिमेंट्स, सेकंड वन इज कनेक्टिंग, विल बी बैलेंसिंग, थर्ड वन टिप टचिंग टू अदर पार्ट is intensifying other finger and enhancing the metabolic activity. Fourth है folding one of the finger and putting the other finger on the top of it is reducing the finger which is folded. फिंगर का जो भी correlated element है उसको हम लोग reduce कर रहे हैं, तो इसमें वायु का है। तो फिफ्थ वन इज, इफ आई बैलेंस, इफ आई कनेक्ट समथिंग लाइक दिस, इसमें ही मैंने क्या किया, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया है, उसके ऊपर थंब रखा है, और देन आई एम कनेक्टिंग विथ अदर 3 फिंगर्स, कीपिंग द लिटिल फिंगर स्ट्रेट। तो ऐसे दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अपान वायु मुद्रा। देन उसके लिए आपका आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, योगिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अपान वायु किधर आएगा, तो उदान वायु ऊपर का, प्राण वायु ब्रीदिंग का, समान वायु डाइजेशन का, लोअर पार्ट जो भी एक्सक्रीशन, यूरिनेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, डिलीवरी ऑफ द बेबी और द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो भी नीचे की तरफ जाता है वो अपान वायु है। तो व्यान इज द बॉडी सेंसेशन। तो आपको ये तो आपको पता होगा, उदान, प्राण, समान, अपान एंड व्यान, जो 5 टाइप्स ऑफ vata according to Ayurveda, and this is the same context of understanding according to yoga. तो इसमें I am reducing the vayu of one context, I am balancing the Agni, the Akasha and Prithvi element. I am not touching the water part. So this will help for the Apana vayu, जो भी पेट के नीचे है. So this one I use it for diabetes because it is connected to, Udana Pran, Saman, Apan and Van. Yes. So I'm connecting. When you are doing this gesture, scientific, this is a spiritual correlation to increase your pranic energy, or increase your soul energy, or increase your autonomic nervous system, or increase your vital capacity, so that body can heal better. If I understand the body, mind, spirit concept, you're using the subtle energy modulation technique to re-energize. Recharge is easy to understand. Recharge my body, increase my biomagnetic energy. By increasing the biomagnetic energy, you are going to have certain good effect on that particular organ or the entire system. So apana vayu mein usually hypertension, heart related ailments, diabetes mein use karta hu. With this, I'll give it a small pause, and then yoga and Ayurveda is so much relevant even to the present world, because wherever we connect yoga, it acts like a water. It will take the shape of that. Somebody says Christian yoga, somebody says yin yoga, vinyasa yoga, vini yoga, structural yoga, Shashikant yoga, medical yoga, whatever you can say. There are as many number of yoga institutions as that of number of individuals in the world. So do not count the connect what type of yoga. If you understand any research in the yoga field, Western people only understand the father of modern yoga. Who is the father of modern yoga? Krishnamacharya, then V.K.S. Iyengar, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga. Chennai, Mysore and Pune. Only these three people's contribution Western world understand. But when I want to start any research in the Eastern world, I cannot think like Krishnamacharya, with all due respect, Krishnamacharya ji, Iyengar, Pattabhi Jois and Desikachar. Only they're not the only 4 people, but they have taken this
concept of yoga to the Western world. That is their contribution. तो हम लोग फर्स्ट विद दिस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट्स को भूलने के बजाय इफ यू कैन कनेक्ट विथ द साइंटिफिक माइंड and then explain to the external world will accept. Now they will not be able to debate. We should have the content and the context to make them accept the situation as per true sense. Truth is always same. Scientifically मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को coherence breathing बोल के western audience को दिखाऊंगा तो actually you are cheating. You are telling that it is a coherent breathing, but actually it is a nadi shodhana pranayama. 72,000 nadis है. तो nadis according to yoga हम लोग accept करते हैं mentally, इसलिए हम लोग nadis को ऐसे ही बात करते हैं, वात पित्त कफ को ऐसे ही बात करते हैं. लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस को कैसे आप नाडीज को यूज करने के लिए बताओगे? तो I'll usually make one research statement that nostril breathing dominance will change every 45 minutes to 60 minutes. एक बार राइट नॉस्ट्रल डोमिनेंट होगा, एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रल डोमिनेंट होगा. तो वो रिसर्च बताता है. When you are doing nadi shodhana pranayama, if you are able to make the balancing of the right and left nostril together simultaneously, then you are doing true nadi shodhana pranayama. Otherwise you are simply doing just a breathing technique. Similarly, when you are holding some mudra, वो मुद्रा होल्ड करने के टाइम पे आपका बॉडी माइंड स्पिरिट का जो इक्वालिटी है, या बॉडी माइंड स्पिरिट का जो बैलेंस है, वो पूरा बैलेंस में आ गया तो देन द मुद्रा विल बिकम एक्टिवेटेड. अदरवाइज इट विल बिकम जस्ट अ फिंगर टचिंग द टिप ऑफ अनदर फिंगर, दैट्स इट. तो ग्रॉसली हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम आसना जो भी हम लोग बोलते हैं, उसमें स्थिरम सुखम आसना, आसना के लिए हम आप लोग बोलते हैं, उसमें क्या होना है, बॉडी माइंड, मैं मुद्रा पकड़ रहा हूँ, मेरा माइंड कंप्लीटली शुड बी एट द लेवल ऑफ वेयर माय कांटेक्ट एरिया. बहुत टाइट भी नहीं पकड़ना है, बहुत लूज भी नहीं पकड़ना है. तो माय माइंड शुड बी एट दैट मोमेंट. माइंड उस मोमेंट में है तो साइकोलॉजिकली थॉट डिसोसिएशन होता है. आपके थॉट्स डिसोसिएट होके यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. थॉट डिसोसिएशन हो रहा है तो रूटीन वरीसम थॉट्स कम होता है. तो नंबर ऑफ थॉट्स, हाँ, नंबर ऑफ थॉट्स जो आपका नंबर में बहुत सारे माइंड में जो विचार है वो विचार कम होता है. विचार कम हो रहा है तो स्ट्रेस कम होगा. स्ट्रेस कम हो रहा है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन कम होगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन कम हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक का बढ़ सकता है. पैरासिम्पैथेटिक का बढ़ सकता है तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बेटर रहेगा. रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बेटर है तो आपका बॉडी विल फोकस ऑन रिजुविनेशन एंड रिपेयर. जब आप स्ट्रेस में रहते हो, बॉडी रिपेयर करने का सोचना नहीं है. बॉडी में इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना है, बॉडी का जो थायराइड को ग्लैंड को अच्छा खून देना है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा करना है. बॉडी विल नॉट फोकस ऑन दैट. बॉडी विल ओनली फोकस ऑन फाइटिंग, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो जब आप रिलैक्स करते हो, मेडिकल वर्ल्ड के लिए, साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए योगा एक ही सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? योगा reducing the sympathetic tone and increasing the parasympathetic tone. Yoga is nothing but this. तो mudras में भी come mudras again, Dr. Sasikanth, what you defined yoga as? Yoga for the Western world is reducing the sympathetic nervous system tone. Stress response को कम कर रहे हो, increasing or balancing with the parasympathetic nervous system or the relaxation response. इसके सेंटेंस में हम लोग बता सकते हैं. नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में बताने वाला हूँ, इस रिसर्च के हिसाब से ही सही है. जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो, बोथ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड. When you are doing Surya Namaskara, both sympathetic and parasympathetic nervous systems are activated. When you are doing mudras, both sympathetic and parasympathetic can be activated. Mudra is a beautiful part of the therapy where I use that it can be done anytime, anywhere, even before food, after food, while walking, talking, कुछ भी. जैसे वज्रासना है,
वज्रासना खाने के बाद में भी किया जा सकता है। मुद्रा ऐसा चीज है कि आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, खाने से पहले भी कर सकते हो, खाने के बाद में भी कर सकते हो, कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। तो इतना बात करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, योग मुद्रा में कुछ है, तो आप कैसे यूज करते हो मैं आपको बता देता हूँ। आई यूज मुद्रा इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपके नंबर ऑफ थॉट्स को कम करने के लिए, आपका ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए, माइंड को डिसोसिएट करने के लिए और बॉडी का एनर्जी को फील करने के लिए मैं मुद्रा यूज करता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है। I have it is, I'll not say that I have invented it. I have just rearranged it. तो हाठा योगा के बेसिस पे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक मैंने अडॉप्ट कर लिया, जहाँ पे क्या बताता है, साइंस क्या बताता है, सांस लेना सिंपैथेटिक, सांस को छोड़ना पैरासिम्पैथेटिक। ब्रीदिंग इन इज सिंपैथेटिक, ब्रीदिंग आउट इज पैरासिम्पैथेटिक। मुझे मेडिकली क्या पता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एनसीडीज बोल के आप चेक कर लीजिए। एनसीडी का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 41 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। उसमें 4 मेजर कैटेगरीज आता है डिसीज। 80% ऑफ प्रीमेच्योर डेथ विल ओनली हैपन बिकॉज ऑफ दिस 4 ग्रुप ऑफ डिसीजेस। कौन से 4 हैं? एक फर्स्ट कार्डियक डिसीजेस, हार्ट का प्रॉब्लम जो भी है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जो भी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फर्स्ट। सेकेंड इज कैंसर, ऑल वैरायटीज ऑफ 200 प्लस कैंसर विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। थर्ड वन रहेगा आपका COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो लंग्स का रिलेटेड अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा जो भी है, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। चौथा हो गया डायबिटीज। ये 4 ही ग्रुप ऑफ डिसीज 80% ऑफ द टाइम में डेथ का कॉज ऑफ डेथ है। 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डाइज एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दिस। 41 मिलियन पीपल बहुत ज्यादा हो गए लोगों का। तो डॉक्टर का, एलोपैथी डॉक्टर का क्या है, डिसीज आने के बाद में उसका काम चालू होगा। तो हमारा काम क्या है, डिसीज को आने से पहले इफ एट ऑल वी कैन डू समथिंग टू प्रिवेंट द डिसीज। इतने बड़े स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमको पता चला है, हम लोग बहुत काम करना है डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द डिसीज कोई उसके ऊपर सोचता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट वायबल, नॉट प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इफ आई से दैट आप मुझे कंसल्टेशन दे दो, आपको डायबिटीज में प्रिवेंट कर दूंगा, nobody will give, you know. So what I mean to say is preventive medicine and integrative medicine are not much used in the prevention of the disease as such, because people don't understand, people won't accept. मैं आपका डिसीज प्रिवेंट करता हूँ, आप मुझे कंसल्टेशन दे दो, पीपल विल नॉट गिव। मुझे डायबिटीज आया है, डॉक्टर साहब आप देखो, मुझे मेडिसिन दे दो, डेफिनेटली देन यू गिव कंसल्टेशन। ये मुद्रा का कॉन्सेप्ट है, बिफोर डिसीज स्टार्ट यूज करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मुद्रा यूज करता हूँ, कुछ मुद्रा मैं ऐसे क्विकली कुछ बताऊंगा। ध्यान मुद्रा ऐसे आएगा, इंडेक्स फिंगर और टिप ऑफ द थंब। मैं मिडिल फिंगर यूज करूंगा तो इट विल बिकम आकाश मुद्रा। इफ आई यूज द रिंग फिंगर एंड टच द टिप ऑफ द थंब, इट विल बिकम पृथ्वी मुद्रा। सेम पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी को फोल्ड करके उसके ऊपर मैं अग्नि का इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो सूर्य मुद्रा। इफ आई यूज लिटिल फिंगर लाइक दिस, इट विल बिकम वरुण मुद्रा। ये 5 बेसिक मुद्रा है। तो इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत सारा लर्न कर सकते हैं। जस्ट विल सी, हम लोग अभी करेंगे, विल डू द शंख मुद्रा। ये कॉम्प्लेक्स मुद्रा है। कॉम्प्लेक्स मुद्रा में 2 हैंड्स कैन बी यूज टुगेदर, उसको हम लोग हस्त मुद्रा बोलते हैं। हस्त मुद्रा, शिर मुद्रा, मान मुद्रा, बॉडी का मुद्रा। विपरीत करनी आप कर रहे हो, विपरीत करनी कैन बी यूज एज अ मुद्रा। नेक में जलांधर बंद करने के टाइम पे आप नेक को एक्सटेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मयूर मुद्रा। ऑल द मसल्स ऑफ योर नेक आर एक्टिवेटेड। टंग को यूज करते हो, फोल्डिंग अप, so touching the soft palate, केचरी मुद्रा। तो you look at the tip of the nose, नासिकाग्र मुद्रा। you look at the, यहाँ पे आप यूज करते हो ग्लोबुलर। तो बहुत सारे मुद्रास बॉडी को यूज करते हैं, बहुत सारे मुद्रास हाथ को यूज कर सकता है, बहुत सारे मुद्रास एंटायर बॉडी को भी यूज करते हैं। We use शंख मुद्रा। हाथ को ऐसे फोल्ड करके आपके थंब को 4 फिंगर से आप कवर कर लीजिए, लोअर 4 फिंगर्स को छोड़ दीजिए, और ये एरिया जो है नकल्स हम लोग बोलते हैं, नकल को कवर कर लीजिए। थंब टचिंग मिडिल फिंगर, इसको ट्विस्ट करके ऐसे होल्ड किया तो आपका शंख के आकार में आपका एक मुद्रा दिखेगा। दिख रहा है ना, शंख के आकार।
सो सी शेल और कॉन्च के जैसा दिखेगा। इसको मैं छाती के सामने में पेशेंट को किसी को भी पकड़ने के लिए बोलूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सोच ये है कि पेशेंट का माइंड जो कोई वरीज और टेंशन के ऊपर फोकस कर रहा है उसको डिसोसिएट करके समथिंग न्यूट्रल के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद में ब्रीदिंग के ऊपर वर्कअप करना है। उसके साथ ही साथ जो भी मुद्रा का इफेक्ट है उनको बेनिफिट मिलेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो 3 क्या पॉइंट है, थॉट को कम करना है, ब्रीदिंग को अच्छा करना है, मुद्रा को इफेक्टिवली वर्क करना है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फोकस ऑन द अवेयरनेस ऑफ द थंब के आजू बाजू में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर फोकस करो, मैं बोलता हूँ उनको। कीप आइज क्लोज, सब लोग करेंगे, आप आइज क्लोज कीजिए, कीप योर आइज क्लोज, फोकस योर अवेयरनेस ऑन द थंब एंड द ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द थंब। आप अंगूठे के ऊपर ध्यान दीजिए और उसके आजू बाजू में जो रक्त के गति चेंज हो रहा है, रक्त का सर्कुलेशन चेंज हो रहा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। यू विल अंडरस्टैंड द प्राणा बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन एंड द सेंसेशन ऑफ हीट। आपको कुछ देर में हीट के जैसा आभास होगा, वो प्राणा एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। आप आंखें बंद करके अभी आपके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, शिफ्ट योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रीदिंग। अभी क्या करना है, मेंटली माइंड के थ्रू एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जैसे सोचना है। 4 सेकंड सांस लेना है, 4 सेकंड सांस को रोकना है, 4 सेकंड सांस को छोड़ना है धीरे से। तो 4 मोमेंट, 4 पल हम लोग बोलते हैं, 1 2 3 4। तो वो पल हमको याद नहीं आ रहा है तो आप 1001 सोच सकते हैं। 1001 आप मेंटली काउंट कर रहे हो तो उतना देर तक 4 सेकंड आएगा। नहीं तो आप ऐसे धीरे से इनहेल कीजिए, सांस को रोकिए, सांस को छोड़िए। 4 सेकंड अप्रोक्सीमेटली आपका ब्रेन क्या काम कर रहा है, ब्रेन इज शिफ्टिंग द अटेंशन टुवर्ड्स द न्यूट्रल स्पेस, दैट इज शंख मुद्रा। देन अगेन ब्रेन इज गेटिंग अनदर वर्क, कंटिन्यूस वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, सांस ले रहे हो 4 सेकंड, सांस को रोक रहे हो 4 सेकंड, सांस को छोड़ रहे हो 4 सेकंड। तो ब्रेन इज ऑक्यूपाइड इन डूइंग ओनली दिस। 4 सेकंड लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना, 4 सेकंड लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना। ब्रेन इतने में ही लूप हो रहा है, तो ब्रेन का जो थॉट्स का जो अननेसेसरी थॉट्स है वो कम हो जाएगा। आप थोड़ा आपका चेंजेस लगेगा, आप देख लीजिए। विल डू दिस फॉर 2 मिनट। लंबा सांस लेना है, सांस को रोकना है 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4। धीरे से सांस को छोड़ना है 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4। ऐसे कंटिन्यू करते जाइए। सांस लेना 4 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, सांस को रोकना, सांस को धीरे से छोड़ना 4 सेकंड। कंटिन्यू कीजिए आपके हिसाब से, जितना भी आपको हो पाए, बन पाए। लंबा सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को धीरे से छोड़ना है। कर लीजिए 2 मिनट। सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है धीरे से। सांस को लेना है, सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है। कंटिन्यू कीजिए। ब्रीदिंग इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीद आउट। सांस लेना, सांस को रोकना, सांस को धीरे से छोड़ना। ब्रीदिंग इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीदिंग आउट। सांस ले रहे हो, सांस को रोक रहे हो, सांस को धीरे से छोड़ रहे हो। सांस ले रहे हो,
सांस को रोक रहे हो, धीरे से सांस को छोड़ रहे हो। कीप कंटिन्यूइंग 4-4-4 ब्रीदिंग टेक्निक विथ शंख मुद्रा। करते रहिए और आपका ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है, 4 सेकंड के ऊपर ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ आपका थंब में क्या हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अराउंड द थंब इंक्रीज हो रहा है, वार्मथ ज्यादा हो रहा है। ब्रीदिंग इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग इन, hold your breath, breathe out. Breathing in, hold your breath, breathe out. If you feel enough for the time shortage, I can stop the practice right now. बहुत धीरे से आपके आंखों को खोलना है, उतना ही धीरे से आपको हाथ को भी अनलॉक करना है। हाथ को अनलॉक करने के टाइम पे आप अपने हाथ को नजदीक लेके आके फील कीजिए कि आपका हाथ का वार्मथ ज्यादा रहेगा। The warmth of your hand is increased for sure. तो उतना धीरे से आप आंखों को खोलिए। आप जो सराउंडिंग्स को देखते हो अभी, आपका जो सेंसरी इनपुट्स है बहुत स्ट्रांग है अभी। जो भी कलर आप देख रहे हो, एनहांस्ड कलर, एनहांस्ड सेंसरी स्टिमुलस, एनहांस्ड जो 5 सेंसेस आपका एनहांस्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अवेयरनेस एक्सपांड हो रहा है, आपका ऑरा का एनर्जी चेंज हो रहा है। मेडिकल वालों को, साइंटिफिक वालों को बताना है, क्या बताना है आपको, आपके इंट्रोसेप्टिव स्पेस ज्यादा हो गया। आपका ब्रेन में जो स्पेस को पहचानने का जो कैपेसिटी, अवेयरनेस है बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि फोकस्ड करके आपने थॉट्स को डिसोसिएट किया। थॉट्स को डिसोसिएट करने के बाद में कोई दूसरा अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होगा। स्पेशली उतने उससे भी ज्यादा डीप में जाके बताना है तो इंसुला बोल के पार्ट आता है, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पल एरिया बोल के पार्ट आता है। अब जनरली हम लोग क्या बता सकते हैं, 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सेरेब्रम, लेफ्ट सेरेब्रम, राइट सेरेब्रम, उसके बीच में कॉर्पस कैलोजम है। दोनों ब्रेन में जो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन का जो भी सेंसरी इनपुट, मोटर इनपुट है बहुत ज्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से 2-4 रिसर्च बना लेते हैं। फ्रंटल लोब का फिंगर टैपिंग टेस्ट और अटेंशन स्पैन का चेक कर लिया, अपना मेमोरी रिमेम्बरिंग का चेक कर लिया। ऐसे छोटे छोटे रिसर्च करके अपना पब्लिकेशन दे देते हैं। योगा बहुत बड़ा है, कर सकते हैं, जस्ट कन्विंसिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ द योगा पार्ट इज मच बिगर एंड बेटर। मैं ये वाला प्रिस्क्रिप्शन के जैसा देता हूं मैं। अब देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस वन यू नॉट हैव हर्ड एनीवेयर बिकॉज वी हैव डिजाइन दिस। तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर क्या करता है, RX बोल के टेक दो, हम लोग बोलते हैं। RX का मतलब R और X कहीं पे आपके प्रिस्क्रिप्शन में दिखाई देता है ना, टेक दो, या आप ले लो, उसका मतलब है ये ले लो, टेक दिस। तो टेक दिस में क्या है, आपके डिसीज के हिसाब से आई चोज मुद्रा। बैक पेन है तो मैं मेरुदंड मुद्रा यूज करूंगा, बीपी का कुछ है तो मैं हृदय मुद्रा यूज करूंगा, अस्थमा का रिलेटेड है तो अस्थमा कौन सा है, आकाश मुद्रा। आकाश को इसको फोल्ड करके मैं अस्थमा को ऐसे यूज करूंगा, अस्थमा मुद्रा। ब्रीदिंग टेक्निक सेम रहेगा, मुद्रा चेंज होगा। आप डिसीज बताओ, मुद्रा चेंज होगा और ब्रीदिंग टेक्निक सेम रहेगा। तो क्या ब्रीदिंग टेक्निक है, 4 सेकंड सांस को लेना, 4 सेकंड सांस को रोकना, 4 सेकंड सांस को छोड़ना। कितना होगा, 12 सेकंड्स हो गया। तो वैसे 12 सेकंड्स को आप 20 टाइम्स सुबह, 20 टाइम्स शाम को फर्स्ट 1 मंथ करना है विथ 1 मुद्रा। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। स्ट्रेस कम होगा, आपका इंस्पिरेशन लंग वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी लंग वॉल्यूम ज्यादा होगा, आपका पीक फ्लो रेट ज्यादा होगा। ये मेरा हाइपोथेसिस है। आपको कोई प्रूव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर उसके हिसाब से रिसर्च करके प्रूव कर सकते हैं। तो सेकेंड मंथ में मैं क्या करता हूँ, सांस को लेने का, सांस को रोकने का, सांस को छोड़ने का थोड़ा चेंज करता हूँ।
6 seconds breathing in, 4 seconds holding the breath, 6 seconds exhalation, 6 4 6 कर दूंगा, मुद्रा सेम रहेगा। तो सुबह 20 टाइम्स, शाम को 20, अप्रोक्सीमेटली जितना आपको हो पाता है। तो थर्ड मंथ में मैं बोलूंगा 3 months to 6 months आपको क्या करना है, एक ही करना है, बार बार रिपीटेडली एक ही करना है। मैं जस्ट एक मुद्रा होल्ड कर दिया आपका हार्ट ब्लॉक क्लियर हो जाएगा, नहीं, नो, एब्सोल्युटली नो, अनलेस दिस मुद्रा इज एक्टिवेटेड बाय योर बॉडी माइंड स्पिरिट बैलेंस, जो मॉडर्न साइंटिफिक लोगों के लिए। तो आयुर्वेदा और योगा लोगों के लिए क्या है, योगा का एक ही मतलब है चित्त शुद्धि। योर माइंड हैज टू बी कंप्लीटली क्लेंज्ड। टू व्हाट एक्सटेंट? your logical mind has to be completely cleansed to the extent that this logical mind goes in line with the universal mind. universal mind कहाँ से है? आपका involuntary nervous system के साथ में जुड़ा दो, that will become universal mind. जो स्पेस में कैसे ग्रह गति जैसे मूवमेंट हो रहा है उसका कुछ अपना ओन इंटेलिजेंस है, उसके साथ में आपका माइंड को इंट्यून कर दिया तो यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी जो भी है उसको ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। जस्ट ये आपका लॉजिकल माइंड इज अ ब्लॉकेज, उसको इंटेलिजेंटली अनब्लॉक करना है। तो अनलर्निंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव लर्नड का मतलब क्या है, आपका इंटेलिजेंस को कम करो, बंद करो, देन परसीव दैट हायर इंटेलिजेंस, परसीव दैट इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का इंटेलिजेंस, परसीव दैट इंटेलिजेंस विच इज मच हायर। मुझे मेरे ब्रेन में थोड़ा ही इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन मेरे पेट को पता है कौन से फूड को डाइजेस्ट करके कहाँ पे भेजना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे ऑब्जर्व होना है, उसको पता है। बिकॉज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को मैं आपको परमात्मा बोलना है, बोल दो। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को जीवात्मा बोल दो। सो कनेक्टिंग द जीवात्मा विद द परमात्मा इज योगा। सिमिलरली कनेक्टिंग विद योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द हायर कॉन्शियसनेस कैन बी योगा। तो जो जब होता है क्या मतलब, योर बॉडी गोज टू अ स्वस्थ स्टेट, द वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज और हर ट्रू सेल्फ। So you are centered in your spirit, your body mind spirit is balanced, your nervous system is balanced, then the effectiveness of the mudra will be enhanced. तभी enhance होगा, तब तक नहीं होगा। हाँ ये बोलो यार, ये मैं ऐसा मुद्रा करूंगा क्या इफेक्ट होता है क्या? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। unless you are doing it constantly, working on it with a true dedication, with understanding, with acceptance, with the reduction of logical mind, increase of the intuitive mind, then only it will work. तो मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे बताया था, 6 4 6। थर्ड मंथ से 6 मंथ तक मैं उनको क्या बोलूंगा, 6 6 6। 6 सेकंड सांस लेना है, 6 सेकंड सांस को रोकना है, 6 सेकंड सांस को छोड़ना है। तो ये वाला मैं उनको कंटिन्यू करने के लिए बोलूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि योगा को कोई जस्ट आसना के रूप में मत देखा करे। योगा इस बहुत बड़ा साइंस है, उसको अनलॉक करने वाला मुश्किल है। हम लोग ओनली बॉडी पे ही कर रहे हैं, ब्रीदिंग पे ही कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी जिसको भी जितना भी डिसीज हो वो तो सांस तो लेगा, तो फोकस ऑन द ब्रीदिंग फर्स्ट। आपका बॉडी में ब्रीदिंग अच्छा है तो बॉडी विल बी इनटू अल्कलाइन स्टेट। अल्कलाइन स्टेट है तो जो सात्विक स्टेट है तो डिसीज कम रहता है। तो ये वाला मैंने एक ये कॉन्सेप्ट के जैसे बनाया है, 4-4-4 ब्रीदिंग टेक्निक +1 डिफरेंट मुद्रा, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। एंड दिस इज अप्रूव्ड बाय माय सीनियर्स लाइक डॉक्टर गोपीनाथ है, डॉक्टर राजेश अय्यर हैं। ये सारे लोग 2-2 3-3 साल जो विक्रम हॉस्पिटल में हम लोग वर्क किए, दे एस्टिमेट, दे अप्रूव्ड दिस, साइंटिफिक कम्युनिटी अप्रूव करता है। तो डेफिनेटली दिस इज वन प्रेजेंटेशन। तो मुद्रा के ऊपर हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन भी बोल सकते हैं। तो मुद्रा को मैं क्या कनेक्ट करता हूँ, मुद्रा इज अ बिगिनिंग पार्ट, उसके साथ में आप आसना करो, आसना एंड मुद्रा, उसके साथ में आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन एंड मुद्रा। फॉर एग्जाम्पल लेडी विथ प्री मेनिस्ट्रुअल टेंशन और पीरियड्स हो रहा है, आई आस्क देम टू डू योनि मुद्रा। योनि मुद्रा, कीप इट ऑन द एब्डोमेन, लिफ्ट द लेग अप, वॉल सपोर्टेड लेग्स अप करके विपरीत करनी में योनि मुद्रा करवा के उनको माइंड इमेजरी टेक्निक बनाना है। माइंड इमेजिनेशन करने के लिए बोलूंगा कि आपका लेग्स ऊपर है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से ब्लड थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, लेग्स थोड़ा फ्री हो रहा है, एब्डोमेन के आजू बाजू में जो कंजेशन है स्पेशली अराउंड द यूट्रस, यूट्रस का कंजेशन कम हो रहा है। यूट्रस का कंजेशन कम हो रहा है का मतलब
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके यूट्रस का कंजेशन कम है। कंजेशन कम है का मतलब पेन कम है। तो आप इमेजिनेशन कर रहे हो, इस इमेजिनेशन से आपके एक ब्रेन का पाथवे आता है, पेन पाथवे में रेटिकुलर पाथवे बोल के आता है। रेटिकुलर पाथवे इमोशन से जुड़ा हुआ है। आपका इमोशंस कैसे मिटिगेट करते हो, इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हो, उसके साथ आपका रेटिकुलर रिस्पॉन्स डिफरेंट रहेगा। रेटिकुलर रिस्पॉन्स डिफरेंट रहेगा तो आपका नेचुरल पेन किलर केमिकल एंडोर्फिन एनकेफेलिन अच्छा आएगा तो पेन डेफिनेटली रिलीफ होगा। एज दैट ऑफ पे टेकिंग टैबलेट, मैं टैबलेट्स भी दूंगा, ये भी करवाऊंगा, 2 in 1 इंटीग्रेटेड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एंटी एलोपैथी प्रोपेगेंडा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये मुद्रा यूज करो हार्ट ब्लॉक क्लियर हो जाएगा, हार्ट की सर्जरी जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आपके हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ, जो मेडिसिन लेना है ले लो, आयुर्वेदा के पास जाओ, मेडिसिन जो लेना है सेफली जो लेना है ले लो, उसके साथ में ये करो। इसलिए हम लोग बोलते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब यही है कि वी आर नॉट रिप्लेसिंग एनीबडी, वी आर नॉट गिविंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन, वी आर ओनली गिविंग complementing solution. Integration is the best answer. Yeah. So evidence-based integration is much more brilliant, and we need more people who are into Ayurveda and yoga who can go deep into this science and make the Western people understand and accept and acknowledge the true heritage rather than saying coherent breathing, this breathing, and changing it. Christian yoga, Islamic yoga, Salat yoga. No, yoga is yoga. It is a it's the unlucky part to the Western world that it has been designed by the Sanatanis or Hindus, whatever you call it. So there should not be any debate. If you're doing Nataraj Asana, Hanuman Asana, if you connect with Hanuman or Nataraj, it will connect back to the base. I'll end the session with one statement that आप हर एक stories, Ramayana, Mahabharata, जो भी stories हो, these are all stories are because it is a best possible cognitive behavioral script which anybody would have written. जो ancient ऋषि मुनीज इतने पावरफुल थे कैसा पता नहीं, जो ऑडियो विजुअल जो सिग्नल्स को, ऑडियो सिग्नल्स को मेमोरी में 3 ही पार्ट आते हैं, ऑडियो विजुअल मिक्स, ये 3 ही पार्ट से मेमोरी बनता है। तो इतना ज्यादा स्टोरीज बना दिया कि आपके जो सबकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। सबकॉन्शियस के ऊपर प्रभाव ज्यादा है तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज में उसका इफेक्ट झलकता है। तो श्रवण का जो स्टोरी है, उसके माता पिता को, अंध माता पिता को देखा उसने, दशरथ के हाथों मर गया। सो दैट इट विल जनरेट, मे बी आई विल से इट विल जनरेट इंक्रीज योर ऑक्सीटोसिन लेवल ऑफ योर ब्रेन। ऑक्सीटोसिन लेवल ज्यादा हो रहा है तो आपका इंटरकनेक्टेड इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा तो सोशल हार्मनी ज्यादा होगा। सोशल हार्मनी ज्यादा होगा तो कलह कम होगा। कलह कम हो रहा है तो you are not going to send your parents to the old age home and all this. So that to that level we can connect to yoga. So yoga सब जगह पे है, that's why it is relevant. So I introduced a small part of mudra yoga, how it can be utilized.